কারোর হলো? কারোর কি হলো? তো আমার হ্যালো, মোবাইল ছেড়ে চলে গেল নাকি? শোনা যাচ্ছে না কেন? ও, সরি সরি। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে এখন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। স্পিকার বন্ধ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বলো। তো শোনা যাচ্ছে কিছু হুম, হলো? হ্যাঁ পড়ছিলাম তো, হবে? বেশি পড়তে পারেনি। বাকিরা? ঠিক আছে, আমি শুরু করলাম পড়তে। তো আমাদের কি দেখাতে হবে? না, একটু সহজ। if this then this, if this then this. Okay, so first we assume that AH equal to BH. AH equal to BH, then H1 equal to BH2 for some H1 and H2 in H. Therefore, if we compose it with H inverse, then will be H1 equal to H1 B H2 and H1 H2 inverse equal to A inverse B, then A inverse B equal to H1 H2 inverse belongs to H. Since H is a subgroup that converse, let A inverse B belongs to H. Then A inverse B equal to H3 for some H3 capital H. Therefore, B equal to H3, and this implies B equal to AH, but B belongs to BH. B belongs to BH कैसे होता है? Anyone any idea? B BH में कैसे चला जाएगा? বি বিলংস টু বিএইচ এর জন্য হচ্ছে গিয়ে পি ইকুয়াল টু, হুম ওইটার জন্য তো হচ্ছে গিয়ে তোমার বি বিলংস টু বিএইচ যদি হয় তা কি মানে
কিভাবে হবে এটা? মানে বিএইচ এর এলিমেন্ট গুলো তো বিএইচ এর মতন দেখতে না, মানে কোনো এলিমেন্ট থাকবে এইচ এর, হ্যাঁ। তো বি এর সাথে তো মাল্টিপ্লাই তো কিছু না নেই, তো বিএইচটা কি করে বিএইচ এর মধ্যে যাচ্ছে, আচ্ছা, বিটা কি বিএইচ করে এর মধ্যে। বলছি? হুম, উম, যেমন এইচটা এইচ এর মধ্যে কি করে থাকবে আর বিটা বিএইচ এর মধ্যে কেন থাকবে, মানে কি করে থাকবে আর কি। নর্মালি তো তুমি এরকম দেখছো না, যদি কোনো পি বিলংস টু এইচ থাকে বা বিএইচ থাকে, তাহলে পি বিলংস টু সাম এইচ, এইচ বিলংস টু এই ক্যাপিটাল এইচ, এরকম লিখতেছি। তো হঠাৎ করে এরকম ভাবে বি কি করে লিখে দিতে পারবো যে বিএইচ এর মধ্যে থাকবেই থাকবে? এনি আইডিয়া? দেখো এইচটা সাবগ্রুপ, since H is a subgroup, E belongs to H, ঠিক আছে। আইডেন্টিটি থাকবে, বি এর সাথে আইডেন্টিটি কম্পোজিশন করবো, বি দিবে। তো সে সিমিলারলি তাহলে বিএইচ এইচ এর মধ্যেও এইচ বিএইচ থাক, মানে বি এ এলিমেন্ট থাকবেই থাকবে, কারণ বি এইচ সাবগ্রুপ না, আইডেন্টিটি থাকবে, ওর সাথেও কম্পোজিশন হবে। ঠিক আছে। Thus, the left possesses AH and BH have a common element B, and therefore H equal to BH. সেটা কি করে বললাম যে একটা কমন এলিমেন্ট থাকলে সেম হয়ে যাবে? সঞ্জনা, সঞ্জনা, ইমরুল, আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাহলে এই কি মোবাইল থেকে কই চলে গেল? বাড়িতে প্রতিজ্ঞা, গেছে না হ্যাঁ, বাড়িতে সবাই তো, ওই ছুটি আছে কলেজ, তাহলে বাড়িতে আছে তো তাই। শুধু বাড়িতে গেছে ক্লাসটা জয়েন করলো না? হুম, কিছু করছে হয়তো। বলে প্রতিজ্ঞা, Yes, sir. can you tell me how is this happening? Does the left quotient AH and BH have a common element, and therefore AH equal to BH? कोई एक कॉमन एलिमेंट होने से दोनों कोसेट से लेफ्ट सेम कैसे हो गए? नहीं पता सर। अच्छा, हाँ, तुमने लेफ्ट ज्वाइन किया, ठीक है। ये थ्योरम मैंने पहले करवाया, ठीक है। इससे पहले वाला थ्योरम था, इस थ्योरम में प्रूफ देख लेना। अब मैं रिकॉर्डिंग कर तो रहा था, बीच रास्ते में आ, वो रिकॉर्डिंग का कुछ हो गया, वो मुझे मिल नहीं रहा। आज का ही रिकॉर्डिंग में स्टार्ट किया था, अभी मैं दोबारा बीच में से रिकॉर्डिंग कर, ठीक है। तो ये थ्योरम जो है, ये थ्योरम कहता है कि कोई भी कोसेट जो है, एच का लेफ्ट कोसेट अगर हम बनाए, तो या तो वो सेम होगा, बिल्कुल ही सेम होगा, इधर ए एच इक्वल टू बी एच, और ए एच इंटरसेक्शन बी एच विल बी एम्प्टी। मतलब या तो आइडेंटिकल होगा या फिर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो वही थ्योरम का स्टेटमेंट इधर यूज हो रहा है। द लेफ्ट कोसेट्स एच एंड बी एच हैव ए कॉमन एलिमेंट, हमको एक कॉमन एलिमेंट मिल गया, मतलब इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाइव है, उससे हम डायरेक्ट बोल देंगे कि एच इक्वल टू बी एच।
समझ में आ गया? हेलो संजना, क्या तुम अभी क्लास में हो? जी भैया। कहाँ चले गए थे? भैया वो भाई के पास गए थे। अच्छा, तो फिर अभी बताओ कि ये जो लास्ट स्टेटमेंट लिखा लिखा है ना, ये दास दी लेफ्ट पोस्टेड एच इक्वल टू बी एच हैव ए कॉमन एलिमेंट बी एंड देयर फोर एच इक्वल टू बी एच हो गया। ठीक है, ये कैसे हुआ? मतलब कौन सा थ्योरम हमने यूज किया था कि हम बोल सके हमको एक कॉमन एलिमेंट मिला, उससे हम बोल रहे हैं कि दोनों लेफ्ट को से सेम होगा। पता नहीं भैया। ये वाला थ्योरम जो क्लास में शुरू में करवाया, आइडेंटिकल होगा या फिर नो कॉमन एलिमेंट होगा। हमने यही प्रूव किया ना कि अगर कोई एक कॉमन एलिमेंट मिल गया तो मैं लास्ट में आके प्रूव कर दिया ए इज इक्वल टू बी एच है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोगों को ये 1.5 घंटे का क्लास ठीक लगता है या फिर 1 घंटे का क्लास करो बस? 1 घंटा भैया। बाकी लोग? ব্যাপারটা 1 ঘন্টা। হচ্ছে যদি টপিকটা একটু মানে শুরু থেকে ভালো লাগে না, তাহলে আর সময়কে সময় মনে হয় না। আবার যদি টপিকটা মানে শুরু থেকে খারাপ লেগে যায়, তাহলে আধা ঘন্টাও খুব सीधा খারাप लगे सीधा जाए। बोलना, 1 घंटा या 1.5 घंटा सीधा अरे सीधा बोलो। मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि अगर अगर अच्छा लग गया तो वो तो फिर डिपेंड ही नहीं करता टाइम है या नहीं है। अगर अच्छा ये नहीं लगा ये फिर तो बताओ आधा कि घंटा भी अच्छा मजा नहीं लग आता है। रहा, तो भाई ये बता अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? हाँ, अभी तो सही जा रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, अभी आप कराओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1 घंटा और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करवा दूंगा भैया वो बस। एक्चुअली हम लोग घर आ गए हैं तो घर पे कुछ ना कुछ काम दे ही देते हैं, तो बीच बीच में भागना पड़ जाता है। समझ सकता हूँ, मैं भी घर पे ही हूँ। तुम लोगों का घर वेस्ट बंगाल में ही है ना तीनों का? जी भैया। तुम्हारा वेस्ट जी हाँ, सर। बंगाल, तुम लोगों का वेस्ट बंगाल में किधर है? मेरा मिरिक में है। मेरा संजना, बिरपाड़ा। कौन सा बीरपाड़ा में, जलपाईगुड़ी बीरपाड़ा या फिर फालाकाटा वाली? मतलब वो दलगांव बोलते हैं ना, फालाकाटा जलपाईगुड़ी तो दोनों आसपास ही है। मतलब फालाकाटा वाला, हाँ। फालाकाटा वाला, अच्छा। जी भैया। अच्छा, तुम लोगों का सीयूईटी देके एग्जाम हुआ है ना? नहीं भैया, कि फिर मार्क्स के बेसिस पे। तुम लोगों का मार्क्स कितना मिला था 12 में? मेरे को मिला था 80%। 80%? तुम लोगों को बताने में कोई शर्म तो नहीं है, मतलब दिक्कत तो नहीं है ना, वरना मैं नहीं दूंगा। मेरे को तो कुछ नहीं है भैया, मैं तो सीबीएसई वाली हूँ। अच्छा, मेरा 72 आया था। कौन सा बोर्ड? मेरा ये वेस्ट बंगाल बोर्ड। ओके, इमरूल? আমারও এসেছিল ওই কম বেশি করে 75-এর উপরে। 75.5 मान लो। হুম হুম। तुम लोगों को इस परसेंट में सिलीगुड़ी कॉलेज मिल गया तुम लोगों को? ব্যাপারটা वो হচ্ছে तो আমাদের हमें नहीं ডিপার্টমেন্টটাই चाहिए ছোট। था ना भैया सिलीगुड़ी, वो तो हमने फॉर्म पे डाला था, फर्स्ट नंबर में था, अब लेना ही पड़ गया, लास्ट में मिल गया तो।
वो तुम लोग का अपना काउंसलिंग एक साथ में हुआ ना। देखो हमारे टाइम पे पता है मेरा मिस क्यों हुआ, क्योंकि हमारे टाइम पे अलग अलग कॉलेज का फॉर्म अलग अलग से तुमको भरना पड़ता था। तो मैंने सिलीगुड़ी कॉलेज का भरा ही नहीं, ये मैंने भरा ही नहीं। ओ, तो मुझे हमारा मिला था 82 मिला था। ठीक अब है। अभी अभी डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर ना आपका, अगर मतलब वो जैसे भैया केमिस्ट। और पहले तो जैसे अलग अलग होता था इस टाइम, फिर बाद में हमारे टाइम में एक साथ कर दिया। एक साथ किया किया नया रूल लागू हो गया कि मतलब फर्स्ट पे जिसका आ गया वो नीचे वाले पे नहीं जा सकता है, ऐसा करके। वैसा ही हर जगह काउंसलिंग होता है, जैसे जैम का काउंसलिंग होता है। ठीक है। वह उस उधर भी ऐसा ही होता है। तुम्हारा पहला जो प्रेफरेंस है, अगर वो आ गया, नीचे के दूसरा तीसरा ऐसे ही कैंसिल हो जाता है। अगर तुम्हारे लिए दूसरा तीसरा इम्पोर्टेंट है तो तुमने वो लास्ट में क्यों दिया, उसको उसको पहले देना चाहिए था। हर जगह मुझे लगा काउंसलिंग ऐसा ही सामने होता सामने से शुरू करती हूँ करके, तो फिर मैं तो सामने ही रह गई। है। मैंने सिलीगुड़ी का भरा ही नहीं था, मेरे दिमाग में ही नहीं है। मेरे एसी कॉलेज का भरा था। तो आपने सूर्य सेन वगैरह भी नहीं भरा था? नहीं, मैंने जल सिलीगुड़ी का कुछ भरा ही नहीं था। मुझे लगा जलपाईगुड़ी का एसी कॉलेज मुझे मिल जाएगा। ठीक है। तो मैं बिंदास चिल था, मैंने बस 3-4 जगह भरा था। एक तो रामकृष्ण मिशन था, और आई थिंक हरीशचंद्र हरीशचंद्र या फिर क्या है, मैं भूल गया। कोलकाता का दूसरा कोई यूनिवर्सिटी था। और एसी कॉलेज भर दिया था इधर का। फिर बाद में मुझे किसी ने बोला कि एसी कॉलेज अभी मैथ का स्टूडेंट बहुत सारा है, तो इस परसेंटेज में तुमको एसी कॉलेज शायद ना मिले। और सच में वही हुआ, मुझे नहीं मिला था। मैंने धूपगुड़ी कॉलेज में किया। बाद में मैंने फॉर्म फिलअप किया था, इधर मुझे फर्स्ट लिस्ट में मिल गया था। শিলিগুড়ি কলেজ কি খুব ভালো? प्रोफेसर को तो बोला। আমাদের কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টটা ঠিকই আছে, কিন্তু ম্যাথ ডিপার্টমেন্টে একটা প্রফেসর না। कि হুম। कौन प्रोफेसर है डिपार्टमेंट, कौन डिपार्टमेंट प्रोफेसर नहीं? हमारे जो मैथ, हम लोगों का जो मैथ डिपार्टमेंट है ना, उसमें दो टीचर है। उनमें से एक जो है वो तो मतलब स्कॉलरशिप करते रहता है, और एक जो है वो बस ऐसे ही, और साल में एक बार आते हैं क्लास कराने के लिए, लेकिन हम लोगों को भी नहीं, अगर मेजर है फिर। और ऐसे जो टीचर हैं वो लोग तो बस ऐसे पैसे के लिए आते हैं, मतलब वो ऐसे मतलब कॉलेज में वो पैसा वाला नहीं है कोई भी, मतलब मैं को प्रॉपर। আমি এটা বলছি না, আমি বলছি যে মানে চাকরি কয়জন করে ওখানে ম্যাথ ডিপার্টমেন্টে প্রফেসর দুইজন, এজ এ? দুইজন, মানে দুইজন, পার্মানেন্ট চাকরি মাত্র দুইজন? মাত্র দুইজন। আর কন্ট্রাক্টে কজন আছে? কন্ট্রাক্টর মনে হয় দুইটাই আছে মনে হয়, দুটা কি তিনটা হয়তো বা। আমাদের তো দুইজনই নিয়েছে, রিসার্চ ওই পেপার দুইজনই কতজন নাই। আছে? তোমরা তো যেটা জানো রিসার্চ পেপার আছে কি, এটা ম্যাথের ডিপার্টমেন্টের ছেলে পেলেই জানবে। हाँ। तो है ये जो, तो हमारे टाइम पे ये दिक्कत था कि हमको अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ता था। तो उस चक्कर में बहुत सारा कॉलेज में, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि बाहर के कॉलेज है इसके, उस चक्कर में। ठीक है। तो मेरा को जैम देने का इसीलिए मन था, मैंने एक्चुअली एनबीयू में घुस गया था एमएससी के टाइम पे, एमएससी के लिए, पर मैंने छोड़ दिया। मुझे उस टाइम पे समझ में आ गया था बीएससी करने के बाद कि अगर तुमको करना है तो अच्छी कॉलेज में ही जाओ, अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, सही रहोगे। चलो अब कोई फायदा तो है नहीं, पर मेरे साथ सही हुआ था। मतलब ठीक है, मेरे को धूपगुड़ी कॉलेज ज़्यादा पसंद आया था, टीचर्स उधर के ज़्यादा अच्छे थे। मतलब ऐसे अच्छे के सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग पिकनिक वगैरह भी गए थे, डिपार्टमेंटल पिकनिक, प्रोफेसर लोग लेके गए। तुम लोगों के उधर जाता है कोई ডিপার্টমেন্ট से ওটা क्या আমাদের প্রতি भैया? বছরই হয়, पिकनिक আমাদের वगैरह প্রতি जाते हो? বছরই নিয়ে যায়, नहीं है ना? हाँ, প্রতি पिकनिक বছরই लेके নিয়ে जाते যায়। हैं तो भैया हमें। हाँ, फिर तो सही बात है, कोई अच्छा अच्छी जगह बात नहीं लेके जाते हैं, पैसा ज्यादा ले लेते हैं, वो बात अलग है भैया। है। तो तुम इधर से वही एक्सपेक्ट करो।
ज्यादा ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, ठीक है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, लेके जाते हैं यही बड़ी बात, तुम लोग जा पा रहे हो भैया वही बड़ी। दूसरे डिपार्टमेंट में तो 2-3 दिन का एक्सकर्शन होता है, क्या क्या होता है। कौन से डिपार्टमेंट? फिजियोलॉजी, फिर आपका ये जूलॉजी, बायो, ये बॉटनी, ये सब में। नहीं, बोध का तो वो काम है ना, जैसे कि मैं तुमको बोलता हूँ, मेरे स्कूल के टाइम पे ये कौन सी जगह था इधर, वो एक जगह है रामकृष्ण, मुझे याद नहीं, 12th की बात है। तो उधर वो फार्मिंग का टेक्निक्स वगैरह होता है ना, जो उसमें रिसर्च वगैरह होता है, वो उधर लेके गए थे, ठीक है। अब मान लो जूलॉजी बोटानी इनका वैसा एरिया अगर है, उधर घूमने लेके जा ही सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एज ए मैथ्स का हमारा तो कुछ है नहीं ना, फिर भी हमको लेके गए, इसलिए मैं बहुत खुश। और हम ही पहली बार बैच थे जो लेके बोले थे सर को तो भाई लेके चलो, चलो तो तुम लोग कौन से ईयर पे लेके चलते? क्या बोला भैया आपने? कौन से ईयर पे लेके चलते तुम लोगों को? अभी तो हमारा आया 2 साल हुआ है, 2 साल तो लेके गए हैं दोनों बार। तो कैसे पता चला लेके चलते हैं अपने? समझी नहीं भैया मैं आपका बात। मैं बोल रहा हूँ মানে कि कौन। মানে আমাদের না পুরো ডিপার্টমেন্ট থেকে যারা সিনিয়র থাকে 6 সেমিস্টার, हम्म। ওদেরকে বলে যে তোরা ডিসাইড কর কোথায় যাবি, মানে আশেপাশে দেখে পাহাড়ের নিচে যেন না হয়। हम्म। এবার ওরা ডিসাইড করে কোথায় যাবে, দিয়ে এবার একটা বাজেট ডিসাইড হয়, সব গাড়ি করা হয়। তার মানে আমরা আমার সম্পূর্ণ ডিপার্টমেন্টটাই যাই, এমনি নাই যে একটা সেমিস্টার গেল একটা সেমিস্টার গেল না, আমাদের পুরো সেমিস্টার যাবে, মানে ডিপার্টমেন্ট যাবে। এবার যার যার মন হবে ওই যাবে। বাজেট বাজেট হচ্ছে ডিপেন্ড করবে হচ্ছে কত টাকা চাঁদা তোলা হবে। কারণ যদি 500 টাকা করে ছাত্রগুলো দেয় তাহলে নন টিচিং স্টাফ 250 টাকা দেবে, আর টিচিং স্টাফ গুলো 750 টাকা দেবে। নন টিচিং স্টাফ 250 টাকা কেন দেবে? ওরা নন টিচিং স্টাফ তাই। স্টুডেন্টদের থেকেও কম দিবে? হ্যাঁ, স্টুডেন্ট কি মাঙ্গে, স্টুডেন্টের কামাই নেই, স্টুডেন্ট থেকে কম দিবে ও? এবার এটা তো আমাদের সিনিয়র গুলা করে, আমরা না, আমরা আসলে তো চেঞ্জ হবে একটু না, তো আমাদের আসবে আগে। নন টিচিং স্টাফ কমপক্ষে স্টুডেন্টের বরাবর তো দেখ, স্টুডেন্ট যদি একজন টাকা দিতে পারে তাহলে তো দেওয়াই উচিত না? হুম, ঠিক আছে, ছেড়ে দে, কিছু করার নেই। अच्छा तुम लोग ये एक चीज चेक करके बोलो, लाग्रांज जो थ्योरम है, ठीक है, उसका तुमको स्टेटमेंट भी करना है या फिर प्रूफ भी देखना है? प्रूफ है तुम लोगों के सिलेबस में? सिलेबस अगर है तो एक बार चेक कर लेना। এর दे- কনসিকুয়েন্সেস এন্ড থিওরামটা আছে, প্রুফ তো দেখতে পেলাম না। আচ্ছা, কনসিকুয়েন্সেস তো এটাই হচ্ছে যে তোমার ইসে হবে, ঠিক আছে বুঝলাম, ঠিক। So next theorem is let H be a subgroup of G, subgroup of a G, group G. The relation define rho on G by A rho G if and only A inverse B belongs to H. For A B belong H is an equivalence relation on R. इक्विवेलेंस का रिलेशन तुमको पता है ना? प्रतिज्ञा, यस सर। इक्विवेलेंस रिलेशन पता है? नहीं पता। इक्विवेलेंस रिलेशन वो है जो तुमने रियल एनालिसिस वगैरह में तुम लोगों को पढ़ाया होगा, वो एक होता है ना, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ठीक है। थ्योरम करो, प्रूव करवा रहा हूँ, तुम लोगों को इसका याद आ जाए। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, ए रो ए होल्ड,
because A inverse A equal to identity and identity belong to H. Since H is a sub, therefore rho is reflexive. For AB belongs to G, A rho B implies A inverse B belongs to H. Implies A inverse B inverse belongs to H. क्यों? क्योंकि since H is a subgroup. A इनवर्स B भी तो कोई एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो इसका क्या आएगा B inverse A inverse to the power inverse, this will be B inverse A belongs to H, implies B rho H. Therefore rho is symmetric. For अब लास्ट वाला है ट्रांजिटिव. फॉर A B C belongs to G, A rho B and B rho C implies A inverse B belongs to H and B inverse C belongs to H. तो हम क्या कर सकते हैं कि A inverse B कॉम्पोजिशन A inverse C, ये कॉम्पोजिशन अभी अलग से लिखने की जरूरत नहीं. A inverse B पोजिशन B inverse C inverse, इसका क्या आएगा A inverse B C inverse D आएगा. A inverse B composition B inverse C belongs to H. Since H is a subgroup, this implies A inverse C belongs to H. समझे ना, क्योंकि B इनवर्स का अगर कंपोजिशन करोगे तो आइडेंटिटी आएगा. Implies A rows. Therefore rho is transitive. Since rho is reflexive, symmetric and transitive, it is an equivalence relation on G. समझ में आए? समझ में आया ये थ्योरम? सिंबल हाँ. बैठा करो तो हम्म. कौन से लाग्रांज थ्योरम, ये इम्पोर्टेंट है. The order
of every subgroup of a finite group G is a divisor of the order of the G। ঠিক আছে, এটা কি বললো, যে সাবগ্রুপের অর্ডার থাকবে সেটা গ্রুপের অর্ডারকে ডিভাইড করবেই করবে। So let H be a subgroup of a finite group G। अच्छा बताना फाइनाइट ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? फाइनाइट ग्रुप का डेफिनेशन क्या है? जिसपे लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे या फिर काउंटेबल टाइप मतलब फाइनाइट होंगे, वही ना भैया? हाँ, जिसमें फाइनाइट एलिमेंट होंगे, ठीक है, काउंटेबल नहीं। काउंटेबल और फाइनाइट दो अलग चीज है। जिस ग्रुप में फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे उसको करेंगे फाइनाइट ग्रुप, मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज फाइनाइट। काउंटेबल नहीं बोल सकते। काउंटेबल का मतलब है कि काउंटेबल इनफाइनाइट भी हो सकता है, जैसे कि जेड है, काउंटेबल है लेकिन वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, तो वो इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप हो गया। आर है, वो अनकाउंटेबल है, तुम रियल नंबर गिन नहीं सकते, मतलब इतने सारे रियल नंबर है कि वो गिनना पॉसिबल नहीं। Let order of G equal to n. Now let us consider let us consider the set of all distinct left courses of H in G. Since G contains a finite number of elements, the number of distinct left courses of H is finite। ये लॉजिक समझ में है? जी में फाइनाइट एलिमेंट्स है, ठीक है, तो लेफ्ट कोसेट कैसे बनाते हैं हम कोई सब ग्रुप लेते हैं, उसमें जो एलिमेंट्स है जी के उसको हम जी एच के एलिमेंट के साथ लेफ्ट साइड से कंपोजिट करते रहते हैं, ठीक है। तो सिंस फाइनाइट एलिमेंट है तो फाइनाइट ही लेफ्ट कोसेट बनेंगे, और उनमें से अगर मान लो कि कोई एलिमेंट एच में पहले से है तो वो तो फिर एच ही पूरा देगा। देन there exists
elements x1 x2 dot 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 xm in G such that x1h x2h dot 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 xmh is a complete list of distinct left posets of H in G. Since these left posets are distinct, they are disjoint. Therefore, G हम लिख सकते हैं, यूनियन फॉर्म में लिख सकते हैं. Since G is partitioned into distinct left posets of H, also each left poset has the same number of elements and H being itself a कोसेट. कैसे कोसेट हो रहा है? आइडेंटिटी के साथ भी तो हम कंपोजिट करेंगे ना लेफ्ट साइड से, तो उससे एक लेफ्ट कोसेट बनेगा और ये पूरा एच ही देगा. आइडेंटिटी के साथ कंपोजिशन कर रहा हूँ मैं, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ. ईच लेफ्ट कोसेट हैज ऑर्डर एच. ठीक है ना? ऑर्डर एच एलिमेंट कैसे समझ हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? देखिए मान लो पी H1 H2 H3 डॉट 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 एच पी एन एलिमेंट है. ठीक है, एच पे लेट्स से एच इक्वल टू दिस, इसमें आइडेंटिटी होगा. ठीक है, अब हम मान लो कि x1 h कर रहे हैं, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? x1 h h1 x2 h2 ऐसा चलता रहेगा. x1 hp इसमें आएगा x1. तो कितने एलिमेंट होंगे? जितने हैं एलिमेंट इतने इधर ही होंगे. ठीक है ना? ये समझ में आया ना ये बात? So order of h elements as there are m distinct left cosets, the total number of elements in G equal to will be m into order of h, क्योंकि G क्या है? यूनियन ऑफ दिस xi h, और हमें पता है कि लेफ्ट कोसेट डिस्टिंक्ट है.
पहले के उसमें पर रखा है कि डिस्टिंक्ट होगा या फिर एकदम पूरा का पूरा सेम होगा। डिस्टिंक्ट है तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो जी के ऑर्डर कितने एलिमेंट होंगे, एम इंटू ऑर्डर ऑफ एच। इसका मतलब क्या है, इन एम इंटू ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू एन। दिस implies ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड एन, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, hence proof। ये समझ में आया ये? बताओ, कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। हेलो। सर एक बार फिर से ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए। हम्म, হ্যালো हेलो। হ্যালো দা, बोलो। আমাদের হচ্ছে গিয়ে ওইটার সঙ্গে ইনক্লুডিং ফার্মেন্ট যেটা আছে না, হুম ফার্মেন্ট থিওরাম ওইটাও আছে। ওটা তো কনসিকুয়েন্সে বলো না, তোমার কনসিকুয়েন্সের মধ্যে আরো একটা ইম্পর্টেন্ট থিওরাম আছে, এভরি গ্রুপ অফ প্রাইম অর্ডার ইজ এ সাইক্লিক গ্রুপ। ওইটাও একটা হুম, ইম্পর্টেন্ট ফরম্যাট। ঠিক আছে, করাই যাবে। গ্রুপ অফ হোমোমরফিসিস এন্ড আইসোমরফিসিস আমার পক্ষে প্রিন্সিপাল। এটা 14 তো এই মাসে শেষের দিকে কমপ্লিট হয়ে যাবে তোমার এই ইউনিট 3 গ্রুপটা। না হ্যাঁ, সিলেবাস? সিলেবাস তো আমাদের রিং থিওরি যে মানে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা তো স্টার্টই করলাম না। আমার এই মাস লাগবে না তো, কারণ এরপরে আজকে যদি আমরা ওই ফার্মেন্ট শেষ করি তাহলে হচ্ছে গিয়ে তারপরে থাকবে হচ্ছে গিয়ে ওই গ্রুপ অফ হোমোমরফিসিস আর আইসোমরফিসিস থাকবে, and the theorem of basic properties। এই দুটো নর্মাল টপিক, দুইটা টপিক। নর্মাল সাবগ্রুপ নাই তোমাদের? না, নর্মাল সাবগ্রুপ তাহলে তো ভালো কথা। লেফট কোসেট আছে, কোসেট কি আছে? এই নর্মাল সাবগ্রুপ আছে তো তোমাদের? কি আছে? নর্মাল সাবগ্রুপ আছে তো তোমাদের? নর্মাল সাবগ্রুপ হ্যাঁ ইউনিট 3 তে? হ্যাঁ, কোষের পর নর্মাল, তারপর কোশেন্ট। দিল্লি এখনো দূরে আছে বাবা। দেখতে পাচ্ছি না তাই। শুরুর থেকে পর, অর্ডার অফ এ গ্রুপ, আচ্ছা অর্ডার অফ। আচ্ছা, আমি চলছি তাহলে কিরকম? আমি ভাবছি হ্যাঁ হচ্ছে আমরা আমি ভাবছি হচ্ছে আমরা এক এক করে চলছি, ঠিক আছে? কারণ এখন হ্যাঁ, আমরা যেটাতে আছি আমি তারপরেরটাতে গেলাম তো, তাই মানে উপরে গুলো বাকি আছে এখন, তাই তো? ইউনিট 2 শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমি ওই আর কি ইউনিট 2 শেষ হয়েছে। স্কেমা আবার ফলো করছি, বইয়ের যে সিকোয়েন্সে আছে ওইভাবে আছে, সিলেবাসে তোমাদের সিকোয়েন্সে ঠিকঠাক ভাবে নাই। ও, ওদের ঠিক আছে ঠিক আছে। লিখতে বসে মনে হচ্ছে হ্যাঁ এটা ইম্পর্টেন্ট লিখে দিচ্ছি, এটা ইম্পর্টেন্ট লিখে দিচ্ছি, বাস। হুম, ঠিক আছে ঠিক আছে। সো আমি আবার বলছি, ঠিক আছে? तो ग्रुपे लाग्रांज थ्योरम में स्टेटमेंट ये कहता है कि ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। जी ठीक है। सो लेट्स से एच बी ए सब ग्रुप ऑफ द फाइनाइट ग्रुप जी। हाँ, ये थ्योरम तभी होता है जब ग्रुप फाइनाइट हो। ठीक है, फिर फाइनाइट ग्रुप जी, ग्रुप अगर का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो ये ग्रुप थ्योरम उसके बारे में कुछ नहीं कहता। ठीक है, एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी, हम मान लेते कि उसका ऑर्डर एन है। Now let us consider the set of all distinct left coset of H। लेफ्ट कोसेट पता है कि हमको G का एलिमेंट लेना है, H के सारे एलिमेंट के साथ हम कंपोजिट करेंगे। H जो आता है उसके हम बोलते हैं कि वो जो आता है उसका हम बोलते हैं लेफ्ट कोसेट। ठीक है, सिंस A since G contains, handwriting बहुत था, since G contains a finite number of elements, the number of distinct left coset of H is finite। समझ में आ रहा है ना?
कि मान लो इसमें देखो फाइनाइटली एलिमेंट है ले रहे हैं एक जी के अंदर, तो हम उसको अगर लेफ्ट साइड से कॉमन कंपोजिट करेंगे तो फाइनाइट एलिमेंट ही आएंगे। ठीक है, और कुछ एलिमेंट तो ऐसा भी होंगे जो एच के अंदर है, मतलब एच के सिंस एच सबग्रुप है जी का, तो वो सारे एलिमेंट जो एच के साथ कंपोजिट करेंगे तो वो तो पूरा एच ही देगा। ठीक है, तो फिर जो ऐसे लिस्ट बनेगा हमको कंप्लीट सेट लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट मिल जाएगा एच की। ठीक है, डिस्टिंक्ट कैसे है, वो पहले वाले जो आज का क्लास का पहला थ्योरम है वही बोल रहे हैं कि डिस्टिंक्ट होगा लेफ्ट कोसेट या फिर सिमिलर एकदम सेम होगा। ठीक है, दिस लेफ्ट कोसेट आर डिस्टिंक्ट, दे आर डिसजॉइंट। सिंस डिस्टिंक्ट है तो पूरा का पूरा डिसजॉइंट मतलब इंटरसेक्शन में फाई है। हमें क्या पता है, सिंस डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो जी को हम ऐसे लिख सकते हैं यूनियन ऑफ दिस लेफ्ट कोसेट्स। जी के एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, जी को यूनियन को लेफ्ट कोसेट सब लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, ये यूनियन कैसे लिख पा रहे हैं। मान लो कि जी ये पूरा गोल है। ठीक है, उसमें एच एक्स वन ए हुआ, एच एक्स टू एच ये हुआ। ठीक है, ये एक्स थ्री एच है। ऐसे पार्टीशन बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे पार्टीशन बने उसको हम यूनियन करके जी के तरफ से लिख सकते हैं। इक्विवेलेंस क्लास अगर तुमने पढ़ रखा है रियल एनालिसिस में तो उधर सिखाते हैं कि अगर हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास है, कोई मतलब कोई रिलेशन बना पा रहे हैं सेट के ऊपर, तो हम उस सेट को पार्टीशन कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट पार्टीशन मतलब डिस्टिंक्ट पार्टीशन कर सकते हैं, जो भी हो वो जानना जरूरी नहीं है। हम जी को ऐसे लिख सकते हैं यूनियन के फॉर्म में। ये समझ में आया, ये पहले हम सब करो, ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, since G is partitioned into distinct left coset, also left coset have same number of elements। ये मैंने इधर समझाया कि मान लो P प्लस वन एलिमेंट है। ठीक है, आइडेंटिटी को लेकर P प्लस वन एलिमेंट है। हम कोई एलिमेंट को इससे कंपोजिट करें लेफ्ट की, ये ऐसा दिखता है एक्स एच जो है। ठीक है, तो इसमें सिंस P प्लस वन एलिमेंट है तो मैं अगर P प्लस वन के एलिमेंट के साथ एक्स वन का कंपोजिशन करूँ लेफ्ट साइड से तो मुझे उतने एलिमेंट देंगे, एक ज़्यादा व एक कम भी नहीं देगा। ठीक है, तो और एज भी एक इससे एलिमेंट है क्योंकि आइडेंटिटी के साथ भी तो हम कंपोजिट करेंगे। ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ हैज ऑर्डर एज। ये देखो इतने एलिमेंट है तो इतने भी एलिमेंट होंगे तो ऑर्डर एज। तो हम ऐसे यूनियन करके डिसजॉइंट एलिमेंट का ऐसे लिख सकते थे, लिख रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास एम डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एम इंटू ऑर्डर ऑफ एच। मान लो कि जी को हम कैसे लिख रहे हैं, एक्स वन एच यूनियन एक्स टू एच यूनियन डॉट 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 यूनियन एक्स एम एच। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर ऑफ एच, इसमें ऑर्डर ऑफ एच, ऐसे ऑर्डर ऑफ एच कितनी बार गया है, एम टाइम, एक सेम टाइम एम टाइम है। ठीक है, तो अगर एम टाइम हम ऐड करेंगे ऑर्डर ऑफ एच को तो क्या आएगा, एम इंटू ऑर्डर ऑफ एच, ये पूरा का पूरा एलिमेंट जी के बराबर है तो ये ऑर्डर ऑफ जी आ जाएगा। समझ में आए, तो हम इसके क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को। ये देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच। एम वैल्यू देगा, डिवाइड कर रहा है ये। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी लोग zero, every group
of prime order is cyclic. ये इम्पोर्टेंट है। मतलब ये ऐसे भी आ सकता है कि 2 नंबर का नंबर दे दे, ग्रुप का ऑर्डर ये है, क्या ग्रुप साइक्लिक होगा, क्या होगा वगैरह, समझ रहे हो? ये लास्ट थ्योरम है आज का। Let G be a group of prime order P. Since P is a prime, order of G is greater than 1. ठीक है? Let A be a non-identity element of G and H be the cyclic subgroup generated by A. Therefore, order of H is greater than 1. ठीक है? Since H is a subgroup of G of finite order P, order of H is a divisor of P. ये लाग्रांज थ्योरम का रूल है कि अगर सब ग्रुप एग्जिस्ट करे तो उसका ऑर्डर डिवाइड करेगा बाय लाग्रांज थ्योरम। Since P is a prime, the only divisor of P are 1 and P. Therefore, order of H equal to P. ऑर्डर ऑफ H इसीलिए 1 नहीं होगा क्योंकि फिर एक ही एलिमेंट है, मतलब वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। हमने मान रखा है कि ए नॉन आइडेंटिकल है, ए नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ H कैन नेवर बी 1। Therefore, H equal to G, and this proves that H is a cyclic group generated by E. ये समझ में है? और एक बार সো এই গ্রুপ এই থিওরামটা স্টেটমেন্টে মানেটা হচ্ছে বাই দি থিওরাম অফ দি স্টেটমেন্ট সে কি if the group order is prime then the group will be a cyclic group। ঠিক আছে, মানে গ্রুপটা একটা এলিমেন্ট দিয়ে জেনারেট হয়ে যাবে। So first we let G be a group
of prime order. Order of G is prime, मतलब G contains prime number of elements. Prime number জানো তো, ওই ডিভাইড করবে আর 1 ডিভাইড করবে, আর কিছু করবে না। হ্যাঁ Since P is prime, order of G is greater than 1 by definition of the prime number. Let A be a non-identity element of G and H be a cyclic subgroup generated by A. So for any finite group, there will exist a cyclic group by A element. ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। आई थिंक पहले करवा चुका हूँ कोई थ्योरम वगैरह में, बहुत पहले। Therefore order of H is also greater than 1, क्योंकि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ग्रेटर देन अगर इक्वल टू 1 तभी होगा अगर कोई सब ग्रुप है उसका ऑर्डर 1 है। इसका मतलब वो बस इम्प्रॉपर सब ग्रुप की बात कर रहा है, सिंगलटन नहीं वाला। Since H is a subgroup of G of finite order P, cyclic over G of finite order P, order of H is divisor of P, लाग्रांज थ्योरम से बोल सकते हैं। and since আমরা কি মানছি যে we assume that P is a prime number, so the only divisor of P will be 1 and P, therefore order of H will be equal to 1 or P. 1 can't be possible, একটু আগে বললাম কেন, order of H will be P. তো এখানে তুমি এখন নাও লক্ষ্য করো, তুমি যে হচ্ছে একটা গ্রুপ আছে, there exists a group and it has a subgroup also. So and the order of the group and order of the subgroup is same. They are saying that the number of element in the G and number of element in the H have the same number of elements and they both are finite. So only possible case will be that subgroup is equal to the main group. So therefore H equal to G. This proves that G is a cyclic subgroup generated by A. বুঝা গেল? হুম ঠিক আছে, তাহলে আজকে এত অব্দি রাখতেছি, কালকে ফরম্যাট থেকে শুরু করবো। কালকে কালকে টিউশন আছে মানে পরের দিন শনিবার। ও ঠিক আছে হুম, ঠিক আছে, গুড নাইট।